A very good morning to my dear students. Today's topic is equation of continuity from hydrodynamics. Today we will discuss how to derive equation of continuity in cylindrical coordinate system. Cylindrical system contains r, theta and z as a variable. We have p, q, r, s one side and second side is p dash, q dash, r dash and s dash. This point, suppose this point is n and the distance from origin to n is r and this line is parallel to this line, both are r and the theta angle is between this line and the x-axis, and between these two red lines the angle is delta theta. If this is r and this is theta, so this distance must be r delta theta from the formula theta equal to s by r. Now let there be a fluid particle at P whose cylindrical coordinate system is r, theta and z, where r is greater than equal to 0. This is the definition of cylindrical coordinate system. And the value of theta lies between 0 and 2 pi, and the value of z is between minus infinity to plus infinity. We have considered density of the fluid, which is a function of r, theta, z and t. And taking P as a corner point, we have constructed a small curvy linear parallelepiped, which is PQRS, P dash, Q dash, R dash, S dash with coordinate system or with length PS equal to R delta theta, SS dash equal to delta R and PQ equal to delta Z. Next we have to find the mass of the fluid that passes in through the phase PSRQ. And next we have to find the mass of the fluid that passes out through this phase. In through this phase and out through this phase. The velocity in this direction is QR. और अगर मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस इन थ्रू द फेस पी एस आर क्यू निकालना है, जो हम लोग पहले भी निकाल चुके हैं कार्टेशियन सिस्टम में, किसी भी साइड से अगर मास ऑफ फ्लूइड इन कर रहा है तो वी नीड डेंसिटी, वी नीड वेलोसिटी इन दैट डायरेक्शन एंड एरिया ऑफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो वी हैव एरिया आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड. This is r delta theta delta z, this is delta z and this is r delta theta. So the area is r delta theta into delta z and the velocity towards this direction is qr. So the mass of the fluid that passes in through the phase PSRQ is rho r delta theta delta z qr, and this is in per unit time. So we have assumed that this value is equal to f of r theta z. अब इस फेज से इन हो रहा है और इस फेज से आउट हो रहा है. इस फेज और इस फेज में सिर्फ डेल्टा आर का डिफरेंस है. तो हम लोग मास ऑफ द फ्लूइड दैट पासेस आउट थ्रू द फेज पी डैश एस डैश आर डैश क्यू डैश जो लेंगे वो होगा फंक्शन आर प्लस डेल्टा आर थीटा जेड. दिस इज अगेन इन पर यूनिट टाइम. सिमिलरली नेट गेन इन मास पर यूनिट टाइम विद इन दिस parallelepiped due to the flow through the phase PSRQ and P dash S dash R dash Q dash. अब कर्वी लीनियर पैरेललोपाइपेड है तो हम लोगों के पास 6 फेस है, 6 प्लेन है, एक से इन कर रहा है दूसरे से आउट हो रहा है. इस तरह से हम लोग 3 पेयर बनाएंगे. तो एक पेयर में कैलकुलेट कर चुके हैं. नेक्स्ट पेयर इज P dash S dash R dash Q dash and PSRQ. तो इसमें भी मास दैट इंटर्स इन द फेस PSRQ माइनस मास दैट लिव्स थ्रू द फेस P dash S dash R dash Q dash is equal to एफ आर थीटा जेड माइनस दिस. ये कैलकुलेट किए यहाँ और दूसरा आउट जो कैलकुलेट किए हैं दैट इज दिस. तो इन एंड आउट कैलकुलेट करना है. इन एंड आउट हो जाएगा एफ ऑफ आर थीटा जेड माइनस एफ ऑफ आर प्लस डेल्टा आर थीटा जेड. टेलर थ्योरम से इस पर्टिकुलर टर्म को एक्सपैंड करेंगे और कैल्क देखेंगे वैल्यू क्या आता है. जो वैल्यू मिला वो हम लोगों को मिलेगा ये. अब यहाँ पे एफ का वैल्यू वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे, रीसब्स्टिट्यूट, तो हमारे पास ये वैल्यू आएगा. और जो भी टर्म आर पे डिपेंड नहीं कर रहा है सबको बाहर लेके आएंगे. तो वी हैव माइनस डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा जेड एंड दिस इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर एंड रो आर क्यू आर. एक फेज का ये कंप्लीट हो गया. मतलब हम लोग देख चुके कि टोटल गेन कितना हुआ, नेट गेन कितना हुआ पी क्यू आर एस पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश में. अब हमारे पास 2 पेयर और आ गया. 2 पेयर हमारे पास और है क्योंकि कर्वी लीनियर पैरेललोपाइपेड है. कर्वी लीनियर पैरेललोपाइपेड में 6 फेस है, 6 प्लेन है. तो एक से इन सेकंड से आउट ऐसे करते हुए 3 पेयर बनेगा. सेकंड पेयर इज वी हैव टू कैलकुलेट
the net gain in the mass per unit time through the phase SR R dash S and QP P dash Q. This is equal to this value, and net gain in mass per unit time through the phase, the last pair is PSS dash P dash and QRR dash Q is equal to minus R delta theta delta Z del by del Z rho QZ. तो इक्वेशन नंबर 3, 4 एंड 5 रिप्रेजेंट कर रहा है एक एक पेयर पे जो टोटल नेट गेन ऑफ मास हुआ है. नेक्स्ट इज टोटल रेट ऑफ मास फ्लो इनटू द चूजन एलिमेंट. जो एलिमेंट हम लोग चूज किए, जो कर्वी लीनियर पैरेललोपाइपेड है हमारे पास, उसमें टोटल रेट ऑफ मास क्या होगा, जो तीनों साइड से नेट गेन मिला है. दिस इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 6. नाउ मास ऑफ द फ्लूइड विद इन द एलिमेंट एट टाइम t. कर्वीलिनियर पैरेललोपाइपेड के अंदर जो मास है वो क्या हो जाएगा, उसका एरिया इनटू डेंसिटी. दिस इज इक्वल टू रो r डेल्टा थीटा डेल्टा z. अब रेट ऑफ मास फाइंड करना होगा तो दिस मस्ट बी, we have to take partial derivative of this value with respect to t. So del by del t rho r delta theta del z, and this is equal to r delta theta del z del rho by del t. This is equation number 7. Now from conservation of mass, rate of increase of the mass of the fluid within the element is equal to rate of the mass flowing into the element. मतलब इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 इक्वल हो जाएगा. दोनों को इक्वेट करते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा. दोनों को इक्वेट करने के बाद हमें कुछ मिलेगा, दैट इज इक्वेशन नंबर 8. सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं किया. Now equation 8 represent equation of continuity in cylindrical system, and it holds at all points of the fluid free from sources and sink. ये ट्रू है किसके लिए, सिलेंड्रिकल सिस्टम के लिए. एंड इट होल्ड्स एट ऑल पॉइंट, सारे पॉइंट में ये वैलिड है, सारे पॉइंट में ये इसको सेटिस्फाई करता है. पर किस पॉइंट में सेटिस्फाई नहीं करेगा, वहां पे अगर सोर्सेस और सिंक ना हो. बस सोर्स का मतलब जहां से सोर्स एंड सिंक, अगर उस पर्टिकुलर फ्लूइड में या जो भी जहां पे भी हम लोग कर्वीलिनियर पैरेललोपाइपेड कंसीडर किए थे, पी जो पॉइंट लिए थे या जो एलिमेंट्री एरिया कंसीडर कर रहे थे, वहां पे सोर्स